Hello students, how are you? I hope you all are fine. So beta, welcome to English class. Beta, in our previous class we have read lesson The Canary. Now we will do the exercise of this lesson. But firstly we start the new words of the lesson. So let's start. First, sweetly. 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 Second one is case. CAGE. Case. Third one is cleaned. 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 Fourth, lump. 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 Fifth one is jealous. 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 Sixth one, interest. 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 Seventh is worst. 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 Eighth is thirsty. THIRSTY. Ninth is unhappy. UNHAPPY. Tenth is hoping. HOPING. 11th one is dropped. DROOPED. 12th, stropped. STROKED. Stropped. 13th is dreadful. 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 14th is ashamed. 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 So that is the new words you have to write in your notebook. Now we will do the word meanings. First one, stroked. To move hand gently over some things. बेटा जब हम किसी को बड़े प्यार से उसका हाथ उसके ऊपर फैलाते हैं तो दैट इज द स्ट्रोक्ड. सेकेंड वन इज ड्रेडफुल. टेरिबल. द मीनिंग ऑफ ड्रेडफुल इज टेरिबल. थर्ड वन इज वंडरफुल. वंडरफुल मीन्स अमेजिंग. फोर्थ, लम्प. लम्प बेटा अ पीस ऑफ सॉलिड विदाउट रेगुलर शेप. नाउ फिफ्थ, peered into. To look very carefully. Sixth one is ashamed, and the meaning of ashamed is embarrassed. Seventh is dropped, and the meaning of dropped means bend or hang downwards. Eighth, burst into. Begin suddenly to weep. So that is the meaning. You also write in your notebook. Okay, now we will do the back exercise of the lesson. So that is the tick the correct option to complete the following sentences. C3 exercise. So first one is a canary is. Yes, three options are there. A water bird, a small yellow bird, a bird of prey. Yes, second option is correct, a small yellow bird. Now the second one is Molly was very happy with Somo because he took good care of her, had many friends, liked to hear her song. Yes, first option is correct बेटा. took good care of her. उसकी बहुत ध्यान रखता था बेटा. उसका फर्स्टली इनिशियली में वो स्टार्टिंग वो उसके केस साफ करता था, बीज देता था, पानी देता था. सो बहुत अच्छी केयर करता था. सो द Molly was very happy. Now the third one is Somu lost interest in Molly because he had got a new toy gun. क्योंकि उसको न्यू टॉय गन मिल गई. So fourth one is Molly was lying half dead because she was sick and sleepy. She was sad and unhappy. She had not been fed with food and water. Yes, third option is correct. She had not been fed with food and water. Fifth one, what a dreadful thing, said Somu's mother. The dreadful thing was that, yes, because Soma was
सोमू वॉज इग्नोरिंग मोली। सबसे गलत क्या थी, वो इग्नोर कर रहा था मोली को। सो दैट इज द टिक द करेक्ट आंसर। C3 एक्सरसाइज। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, C4 एक्सरसाइज। बेटा, that the sentence below tell you the sequence of events in the story. However, they are in jumble word. Number them correctly. One is done for you. So, beta, these sentences are in the jumbled order. You have to make the sequence of the events in the story. Okay. So let's start. First one is done for you. First, Somu's father गेव हिम ए कैनरी ऑन हिज बर्थडे। तो फर्स्टली क्या है, सोमोस के फादर ने उनको कैनरी दी ऑन हिज बर्थडे। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस, इन द बिगिनिंग सोमो रेगुलरली गेव सीड्स एंड फ्रेश वाटर टू मोली। यस, दैट इज करेक्ट एंड यू विल राइट इन द सेकेंड वन। नाउ थर्ड वन, सेकेंड सेंटेंस, मोलीज फ्रेंड्स वर जेलस ऑफ हर। यस, ये भी नेक्स्ट ही सीक्वेंस में आएगा बेटा, बिकॉज कि सोमू जो है स्टार्टिंग में बहुत ध्यान रखता था, तो मोली के फ्रेंड जो है वेरी जेलस होते थे, एंड दैट इज इन द 3-1। नाउ नेक्स्ट वन सेंटेंस, सोमूज मदर फेड द लिटिल बर्ड। नो बेटा, ये अभी नहीं आएगा कि सोमू की मदर ने उसको दिया, वो तो बिल्कुल लास्ट में आता है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आफ्टर सम टाइम सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मोली। येस, दैट इज इन द 4th-1 कि स्टार्टिंग में क्या है, वो सोमू उसको देता था फ्रेश सीड, देन मोली के फ्रेंड जेलस होने लगे, देन कुछ समय बाद सोमू ने लॉस्ट इंटरेस्ट, सोमू ने इंटरेस्ट खो दिया मोली में। देन नेक्स्ट सेंटेंस वी विल रीड, सोमू फेल्ट सॉरी एंड दे आफ्टर स्टार्टिंग टेकिंग गुड केयर ऑफ मोलीज। दैट इज द लास्ट बेटा। एंड नेक्स्ट वन, सोमूज मदर सा दैट मोली वॉज लाइंग हाफ डेड इन द केज। We know. Now next one, Molly could not sing because she was thirsty. Yes, that is in the 5th-1. स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सोमूस के फादर ने कैनरी दी। सेकंड पॉइंट है वो स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग में सोमू जो है रेगुलरली सीड्स देता था, फ्रेश वाटर देता था। देन थर्ड क्या हो गया, मोलीज फ्रेंड्स जेलस होते थे। आफ्टर डैट 4th-1, सोमू ने जो है मोली के प्रति इंटरेस्ट नहीं रखा। देन आफ्टर डैट मोली कुड नॉट सिंग बिकॉज शी वॉज थर्स्टी। अब उसको वो पानी नहीं देता था, उसको कुछ नहीं देता था, तो वो क्या है, गाना भी नहीं गा सकती थी बिकॉज शी वॉज थर्स्टी। नाउ 6th-1, नाउ वी विल रीड, सोमूज मदर स्कोल्डेड हर सन। नो। नाउ फर्स्ट-1 तो कर रखे हैं। लास्ट सेंटेंस, द लिटिल बर्ड क्राइड एंड हर फ्रेंड्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। येस, दैट इज द 6th सेंटेंस। नाउ next sentence, Somu's mother saw that Molly was lying half dead in the cage. Yes, that is the 7th one की जो है जब उसके फ्रेंड्स भी फील सॉरी कर रहे थे, लिटिल बर्ड क्राई कर रहे थे, तो वो हाफ डेड हो गई थी। फिर सोमू की मदर ने क्या देखा, मोली जो है हाफ डेड जो है केज में है। आफ्टर डेड क्या होता है बेटा, यस, सोमूज मदर फेड द लिटिल बर्ड को खिलाती है। आफ्टर डेड सोमू मदर स्कोल्डेड हर सन, उसको अपने सन को डांटती है। एंड इन द लास्ट सोमू फेल्ट सॉरी एंड दे आफ्टर स्टार्टिंग टेकिंग गुड केयर ऑफ मोली। सो दैट इज द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इन द स्टोरी. So you will write in your book. Okay beta. So in our next class we will do question answer. Okay beta. Bye bye.